लैंड एंडाउमेंट्स तो नहीं होंगे बट मनी एंडाउमेंट्स है। राम मंदिर के पास है मैसिव, अभी उससे क्या बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं। मतलब वाई? कैंसर हॉस्पिटल आप सरकार से बनाओ ना, या तो कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, बड़ी अच्छी बात है, बट क्या हर रूम में रामायण महाभारत भगवत गीता ड्रॉर के अंदर पड़ी होगी? क्या जब आप उस मंदिर में एंटर करोगे क्या रोज राम की आरती होगी वहाँ पर उस मंदिर में? क्या पुजारी और राम की ब्लेसिंग्स सारे रूम्स में पहुंचेंगी जैसे क्रिश्चियंस काम करते हैं? इफ यू विल टर्न दिस इनटू अ सेक्युलर इंस्टीट्यूशन व्हिच मोस्ट लाइकली विल हैपन, फॉर एग्जांपल श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली का, ठीक है, वहाँ पर वेंकटेश्वरा के नाम की सेवक केवल एक फोटो लगी हुई है। क्या उनके बच्चों को तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ बताया जाता है? क्या वहाँ की टेम्पल की वैल्यूज़ वहाँ पर होती हैं? क्या वहाँ पर रोज़ सुबह आरती होती है? क्या मंदिर है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को एग्रीगेट किया जाता है टू एंश्योर दैट वैष्णव वैल्यूज गो इनटू द किड्स? नहीं होता। क्या फ़ायदा है सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नाम दिया और वेंकटेश्वरा कॉलेज दे दिया, तिरुपति बालाजी ने मंदिर ने फंड कराए a college? Why? Waste of temple money. This is not the purpose of using temple money. Namaskar, Rahul bhaiya, how are you? Thank you for having me here again. I have known you for years, first through Sangam, Saryu, then the incredible job that you've been doing with the Hindu Fund. और अभी you're popular all across for taking UGC to courts. जी. First, before we jump into it, why don't you tell a bit about how is Hindu Fund doing now, because it directly attaches or relates to many of the ventures that you want to take or you've taken earlier as well. In fact, Hindu Fund is a natural progression of what Sangam has been doing and Saryu has been doing. पिछले since April we've given webinars collectively to about 1200, maybe more, 1500 odd people reached out, some in some form or the other, through pamphlets, talks, webinars, some way or the other. About 1500 people, I'm guessing. At this point, we have 21 monthly donors. It's a shame, honestly, for the effort I've put in and my team has put in and how much I've spent just in running operations to inspire people to donate. It's a shame at this point in time. Having said that, there are a few large donors who've come along, जिन्होंने कुछ US में पैसा दिया, which because of FCRA we're not able to bring it to India. So it's lying there. Some donations from just a handful of people in the US. And बाकी सब ना छोटा छोटा देते हैं. And that's the same case in India. Either you donate something and donate it recurring without stoppage. So when we started, you know, the graph goes like this, and maybe you can put the graph in this video itself. It'll peak to say 3.5 lakhs a month, fall to 1.21 lakhs a month. I don't know why. What do people think कि अब क्या हो गया? कि why did you stop your recurring donation? मैंने कुछ पैसा खा के कुछ BMW ले लिया है, क्या कर लिया है मैंने कि you suddenly decide no, now it's gone. The problem with Hindus, and in the last webinar we had Vashi Sharma of Agniveer. He said something very beautiful which I really learned and picked it up, and I will, that's what I'm using here now. That हम हिंदू लोग इवेंट्स में सोचते हैं, आज UGC हुआ, कहाँ डोनेट करना है, हम पैसे भेजेंगे. आज कुछ और some emotive issue आया which hurts us, we will go and donate. We have to stop this nonsense. Why do I say nonsense? Because to run the studio, you have to pay a monthly fee. You have to pay a fee to the cameramen, editors, all of that. It's not only a one-time expenditure. Yeah, you have to work through the year consistently, and all of that bill is running on your head. If you produce a fantastic video, एक video पे donation आ जाएगी. That's not how it should work. How it should work is, if you're doing a great job in doing podcasts which are very, very relevant and you're bringing great issues and people like you, they should donate to you monthly, as an example, right? You get the point? Mm-hmm. Not on an event. Invest in the process. Invest in the institution that is being built. Institutions require to pay bills monthly. That's how I've operated in the Hindu Fund, right? For example, I'll take this example of Ugra Narasimha Trust. He builds temples in Kerala, 16th, 17th project now going on. Over the last, 7-8 years, I think I've been
helping him, supporting him. मैंने शायद एक आध दो बारी कुछ टेम्पल्स के लिए पार्ट मनी भेजा है, वो पहले पहले भेजता था, मैं भी इमोटिवली सोचता था 8-9 साल पहले. Yeah, 16, 17, roughly 17, 18 maybe, something like that, since when I started. Now, for the last several years, I told Vimal, I'm not going to donate for the temple. Temple money you raise from social media, so from all emotive posts. I will fund your office ka expenses, bijli, pani, office salaries, all of that. So that you can become an institution and can scale up. So everything does not run on you alone. Build a team so that you can scale up, right? Otherwise, you'll do one project at a time. If you have social media team, if you have money for them, if you have administrative people, somebody to keep expenses, accounts, all of this business. If you have all of that, and you're secure that ये पैसा हर महीने जरूर आएगा. Okay, that I promised to him. Temple money कब आएगा नहीं आएगा, जब आ गया you build a temple, नहीं आया तो okay wait I guess. But this expense will go on. So anybody is scared of expanding their work until they have a guarantee of how will I pay the salary, how will I pay the monthly bills, utility bills or whatever. That has to be secured. And that is called process investment or institutional investment. You don't invest in an event, you invest in the institution, in a process that that institution is trying to roll out. That difference the Hindu society has to learn. Until we solve this damn thing, we are going nowhere. बट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्या मंदिरों के अंदर इस तरह की चीज़ें हो रही थी, या जब मंदिरों की जो इकोनॉमी है वो डिसरप्ट हुई, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में फॉर दैट मैटर, उसके बाद ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो गया? बिकॉज ये आइडिया बार बार बोला जाता है, हम भी पढ़ते हैं, कई ऐसे लेक्चर्स के अंदर बार बार बातें सुनने में आती है कि हिंदूज हमेशा से फिलांथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर मंदिरों के अंदर डोनेट किया करते थे. दैट नेचुरली वी सी के डिस्ट्रप्शन आया था बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली जिस तरह से समाज ओरिएंटेड था डोनेशंस को लेकर. फिर कई ऐसी बातें भी हुई सोसाइटी के अंदर इस तरह के ढकोसले या फिर वो ऐसे के कि भाई चल वो सिस्टम पूरा डिसरप्ट हो गया. डू यू थिंक कि अब वो डिसरप्टेड ही है, या फिर मंदिरों में भी डोनेशंस जा रहा है, या फिर डोनेशंस करना हिंदुओं ने जनरली छोड़ रखा है? मंदिरों में तो, और धार्मिक कबूतर को बीज खिलाना रोज. सर जैन समाज मुंबई में some people went to court because pigeons are probably the cause of why sparrows have disappeared in cities. Okay, but हम रोज जाके खिलाते हैं because हम पागल हो चुके हैं. हम जाके कहेंगे कि नहीं हम धार्मिक काम कर रहे हैं. डॉग्स को रोज सुबह चावल मीट खिलाएंगे, वो they become so fat sometimes that they can't even run, they have ill health and all of that. But हमारी धार्मिकनेस नहीं खत्म होती. We have become stupid, mediocre people. But that jokes apart. But the main question your was कि क्या मंदिर कैसे चलते थे फॉर एग्जाम्पल, वो भी ऐसी इवेंट बेस्ड चलते थे या कुछ रेगुलर इंस्टीट्यूशन? हाँ, और वही प्रोसेस क्या इस तरफ हम क्यों नहीं कन्वर्ज कर पा रहे? वो मुझे नहीं पता, बट अभी तो प्रोसेस पूरा का पूरा ब्रोकन है. क्योंकि मंदिर चलते एंडाउमेंट से थे जो मोनार्क्स देते थे, लैंड एंडाउमेंट्स देते थे, उसमें खेती होती थी, उसमें रेंटल इनकम होती थी, ये सब होता था. वहाँ से मंदिर सब कुछ फंड कर पाते थे. अब तो तमिलनाडु में जैसे टी.आर. रमेश जी बोलते हैं, अगर मार्केट रेट इस समय अगर टेम्पल्स के पास जो बचा है लैंड लीगली, कम से कम पता नहीं 50% शायद हैज़ बीन इंक्रोच्ड एंड टेकन अवे बाय द चर्च, मस्जिद, लेफ्टिस्ट, सबको पता नहीं किस किस को दुकानें बांट दी हैं, कहीं पर सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल खड़े कर दिए हैं सरकार ने. ये सब इंक्रोचमेंट है. चाहे 50% या प्रॉब्ली लेस बचा है मंदिरों के पास. अगर टी.आर. रमेश जी के अकॉर्डिंग अगर वो मार्केट प्राइसेस पे इस समय में रहे तो तमिलनाडु के टेम्पल्स के पास एनुअली 6,000 करोड़ रुपए आएगा रेंटल इनकम केवल. बट वो सरकार लेने नहीं देती बिकॉज वो 1 रुपया या कुछ नॉमिनल स्टूपिड प्राइसेस कलेक्ट करती है. उसके अगेंस्ट शायद 350 करोड़ या ऐसा कुछ डेटा था. आई डोंट रिकॉल इट प्रॉपर्ली. दैट इज द स्टेट. बट डू यू थिंक के नॉर्थ में जो टेम्पल्स हैं उनके पास भी अब इतने लैंड एंडाउमेंट्स बचे हैं? लैंड एंडाउमेंट्स तो नहीं होंगे बट मनी एंडाउमेंट्स है. राम मंदिर के पास है मैसिव. अभी उससे क्या बना रहे हैं? कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं. मतलब हु व्हाई? कैंसर हॉस्पिटल आप सरकार से बनाओ ना, या तो कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, बड़ी अच्छी बात है. बट क्या हर रूम में रामायण, महाभारत, भगवद गीता ड्रॉर के अंदर पड़ी होगी? क्या जब आप उस मंदिर में एंटर करोगे क्या रोज़ राम की आरती होगी वहाँ पर उस मंदिर में? क्या पुजारी और राम की ब्लेसिंग्स सारे रूम्स में पहुँचेंगी जैसे क्रिश्चियंस काम करते हैं?
The priests work along with such hospitals, right? They don't do all this social service only. They ensure that the message of Jesus goes to every room. Will you do that in the cancer hospital funded by the Ram Mandir? If you will, I'm all for it. If you won't, if you will turn this into a secular institution, which most likely will happen. For example, वेंकट कॉलेज कौन सा है? श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज दिल्ली का, ठीक है. वहाँ पर वेंकटेश्वरा के नाम की केवल एक फ़ोटो लगी हुई है. क्या उनके बच्चों को तिरुपति बालाजी के बारे में कुछ बताया जाता है? क्या वहाँ की टेम्पल की वैल्यूज़ वहाँ पर होती हैं? क्या वहाँ पर रोज़ सुबह आरती होती है? क्या मंदिर है जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को एग्रीगेट किया जाता है टू एंश्योर दैट वैष्णव वैल्यूज़ गो इनटू द किड्स? नहीं होता. क्या फ़ायदा है? सेक्युलर इंस्टीट्यूशन नाम दिया और वेंकटेश्वरा कॉलेज दे दिया. तिरुपति बालाजी ने मंदिर ने फंड कराए. अ कॉलेज? व्हाई? This is a waste of temple money. This is not the purpose of using temple money. So your argument largely is कि हिंदू फंड को या हिंदूज को एसेंशियली समझना पड़ेगा कि प्रोसेसेस को फंड करना चाहिए. और ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशंस खड़े करने के लिए, हाँ जी, ताकि हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर काफी सारे और मल्टीपल काम हो सके. In the sense Arjun, we've not multiple invested. projects. Hindu organizations, including say the Sangh, for example, and whoever, have not invested in building institutions, independent third-party institutions. एक छोटा सा example देता हूँ. I know the conversation is digressing from UGC, but maybe we'll close with this. Somebody very nice from the Sangh really met me right recently, 1-2 हफ्ते पहले. Wonderful man. उन्होंने मुझे कोई publication है, उसमें हनुमान की और रमण महर्षि की एक उन्होंने किताब खुद लिखी थी, बट हनुमान की इलस्ट्रेटेड कॉमिक्स और ऐसे ही 1-2 और डीटीज़ की इलस्ट्रेटेड कॉमिक्स थी. ऑनेस्टली बताओ, एक्सट्रीमली मीडियोकर. अंग्रेजी के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स विद हनुमान इलस्ट्रेशंस. It's not even designed keeping the kids in mind who are going to read it. I asked him, who's going to read it? Kids? He said yes. I said, kids can't read so much English. We have full pages in English for kids. Like what ages? The problem is people try and do everything themselves with their own limited ideas. This job should have been done by a high-class illustrator hired by this organization to produce the best books. Either that, or even better, there are 100 publishers who produce Hanuman's illustrated books. हर गली कूचे हर जगह मिलती है यार. ओके, कार्टून्स, छोटा भीम बने हैं, उससे पहले हनुमान बने हैं, फिल्म्स बनी हैं, ब्रिलियंट फिल्म्स जो आप कभी कर नहीं पाए हैं, राइट? Say some organizations have not produced a great film, and that's not their job. Why get into this? Why not go and approach some institutions कि हम अपने नेटवर्क में आपकी 25,000 कॉपीज बांटना चाहते हैं, आप एक हाई क्वालिटी वो प्रोड्यूस करो. इमेजिन दैट वुड बिल्ड अ थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन. Are you getting me? 1, 2, 3 इंस्टीट्यूशन खड़ी हो जाएंगी. आप 8,000, 10,000, 25,000 का एक ऑर्डर किसी को दे दो, वो आपसे 10 गुना बेटर काम करके आपको देगा. क्यों खुद अपनी इंस्टीट्यूशन खड़ी करनी है विच विल डू मीडियोकर वर्क? ये थिंकिंग हैज टू ब्रेक. So the quality over quantity. Quality over, well yes, but also ये थिंकिंग कि हम सब कुछ हम खुद सॉल्व नहीं करेंगे, हम थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन खड़ी करेंगे who do our work. We'll use them for money ना. वो तो पैसे के लिए कर रहा है, उसको हनुमान से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो स्टोरी टेलिंग ब्रिलियंट करता है, हम उसको पैसे देंगे ना, तुम बनाओ. फेयर पॉइंट. अच्छी क्वालिटी की चीज लेकर आए जो लार्जली मासेस के पास. प्रोड्यूस द बेस्ट फिल्म ऑन हनुमान. वी वांट यू टू डू दिस. कितना पैसा लगेगा? 100 करोड़ रुपए हम ढूंढ के देते हैं, आप प्रोड्यूस करो फिल्म. खुद बनाएंगे क्या? This has to change. Anyway, so that's my institution thing, you know, and this is where the legal fund for the Hindu fund comes in, for example. हाँ, because legal कामों के लिए I remember 2016-17 के अंदर भी I remember आपने लीगल फंड ऐसे एक अलग से रखना, कुछ पूंजी रखना, कोई भी ऐसे केसेस हों उनको सपोर्ट करना, वो काम आपने तो लॉन्गेस्ट टाइम बहुत देर से कर रहा हूँ, बट मैं वो सरयू ट्रस्ट के अंदर कर रहा था. हिंदू फंड बनाने के बाद पहले तो 1,000 करोड़ बोला, फिर नंबर डाल दिया था, पता ही नहीं वहाँ तक पहुँचना कैसे है. फिर लोग सब बोलते भी रहे जो वेबिनार्स पे आते हैं कि यार 1,000 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है, बट वेयर आर यू? सो देन आई थॉट ओके, 4-5 एरियाज हैं. इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस, लीगल
घर वापसी, and spiritual infrastructure, which is largely about ashram and gurukul and whatever. इनमें 25-25 करोड़ के 4 endowments चाहिए, which means अगर ये बन जाता है, suppose some big guy comes and writes me checks of 25 into 4, I will put that in markets, earn about 2.5 crores a year. From that, I will fund a huge number of projects, right? Recurring. किसी को अपनी एक पार्वती जी को अपना बाउल आश्रम की सैलरीज देने के लिए इंटरनेशनल ट्रिप नहीं लेने पड़ेंगे जस्ट टू पे सैलरीज ऑफ द आश्रम. दैट इज़ नॉन, इट्स अ शेम ऑन अस कि अगर उन्हें करना पड़ता है. इतनी बैटल नहीं होनी चाहिए यार, इतनी फाइट नहीं होनी चाहिए. विमल को धक्के नहीं खाने चाहिए. एक छोटा सा ऑफिस लेने के लिए मल्लापुरम में इन एन 85% डोमिनेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन टू बिल्ड हिज टेम्पल्स एंड टू पे नॉमिनल सैलरीज 15,000, 20,000 एंड वॉट एवर थिंग्स लाइक दैट, राइट. अर्श विद्या समाजम को धर्म प्रचारक बनाने के लिए 100 धर्म प्रचारक है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ, जो लोग अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम डेडिकेटेड हैं इस सब के लिए. टू स्मॉल मनी दैट ही शुड बी स्ट्रगलिंग टू रेज मनी फॉर 100 पीपल. अभी 4-5 का भी नहीं रेज कर पाए हैं. This has to stop. This has to change, right? And it will only change when there is a large grant where there is clarity कि इतना पैसा हर महीने हम बनाते हैं, annually इतना बनाते हैं, and then you can budget. इन सब organizations को हर महीने इतना जाएगा. This is the budget we're going to run. It just got to run like a corporate. That's all. That's all I'm trying to do. इसके अंदर एक section legal fund का भी है. Legal fund है. Vishnu, people like Vishnu Shankar Jain. Let's come to UGC now. I mean, I've been working with Vishnu Bhai for but at least about a year and a half closely, 18 months, maybe a little more. I've been supporting lawyers in other places. Yes, बहुत सारे lawyers, for example, एक मुंबई में भी हैं, अपनी जेब से फ्लाइट का पैसा भी देंगे, फ्री में केसेस लड़ेंगे, भारत में पूरे जगह जगह जाके महाराष्ट्र में ट्रैवल करेंगे और अपनी जेब से सारा खर्चा उठाते थे. उनको मैंने बोला कि भाई साहब, अब आप ना कभी भी कोई भी हिंदू कॉज के लिए जाओगे, आप फ्लाइट का ना जो पैसा आएगा ना वो आप हिंदू फंड को बिल करोगे, ठीक है, या हम आपके लिए बुक करके देंगे. तो पहले सरियों से ही होता था, अब शायद अब हिंदू फंड से होता है, बट मे बी प्रॉब्ली सरियों से ही होता है. अभी भी मेरे को ध्यान नहीं दिया. अब वो व्यक्ति, वो शादीशुदा नहीं है, शादी इसलिए नहीं करी कि घर परिवार में घुस जाएंगे तो हिंदुत्व का काम आगे नहीं बढ़ेगा. पहले ही वो व्यक्ति ऐसे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करके बैठा है. अब आप चाहते क्या हैं कि सब अपनी जेब से करें? कहाँ तक कोई व्यक्ति अपनी जेब से डाल के फ्लाइट्स पकड़ेगा, ट्रेन पकड़ेगा? अब समय वो स्पेंड कर रहा है. जिस दिन यूजीसी की गाइडलाइंस एक्सेप्ट हुई ना, हमने जाके पिटिशन डाला. विष्णु भाई लखनऊ जा रहा था. क्यों जा रहे थे? वो मस्जिद वहाँ की जो है, वन ऑफ द टेम्पल केसेस, फ्लाइट सिक्योरिटी से वापस आए क्योंकि नेक्स्ट डे केस लग गया था. हाउ इज ही डूइंग दैट? आउट ऑफ हिज ओन मनी. हाउ इज ही अर्निंग दैट मनी? बाय रनिंग हिज प्राइवेट प्रैक्टिस. दिस कैन नॉट गो ऑन. ही शुड बी एबल टू बिल टू एन इंस्टीट्यूशन, से दैट ये वाला केस मैं लड़ रहा हूँ, आप इसको फंड करोगे? हम फंड करेंगे, राइट? ईदर अ कॉर्पोरेट हाउस और सम नॉन प्रॉफिट लाइक द हिंदू फंड, विच इज गोइंग टू से विष्णु भाई, आप ना ये सारे प्रोजेक्ट हम फंड करेंगे, आप हमारे को एस्टिमेट दे दो, हम अपने बजट्स में डाल रहे हैं. आप फ्री नहीं करोगे, नॉमिनल चार्ज करो. वो कोई पैसे बनाने के लिए थोड़ी ये कर रहे हैं. Are you getting me? This is how it has to happen across the country. सब कुछ सेवा में करो, सब सेवा में करो. ऐसे थोड़ी है. नॉनसेंस कब तक चलता रहेगा? यही नॉनसेंस पैडी कर करके वी आर इन अ स्टेट वेयर वी आर. ये बदलने की कोशिश है मेरी. तो ये नौबत क्यों आई कि आपने यूजीसी को कोर्ट में ले गए? ये नौबत क्यों आई? नौबत तो इसलिए आई क्योंकि ये अनुभव भाई साहब जो मेरे साथ को पिटिशनर है, ये बैठ के वो अपनी यूनिवर्सिटी के बाहर, मुझे पता भी नहीं चला था, इसके बैनर्स, बहुत ही आक्रोश में था, बैनर्स ले के खड़ा था. मैंने कहा कर क्या रहा है? तो उसने मुझे यूजीसी गाइडलाइंस के बारे में बताया. जब तक हमने अप्रोच करा विष्णु भाई को, संजय जी ने भी अप्रोच करा विष्णु भाई को कि केस डालते हैं, तो विष्णु खुद वैसे भी वो तो उतारू रहते हैं कि पता चले कौन सा कोई हिंदू राइट्स वायलेट हो रही है और मैं घुसूं कोर्ट में. तो उनको हम जैसे लोग चाहिए होते हैं, बिकॉज ही हिमसेल्फ कांट गो. नहीं तो अपने पिताजी को बना देते हैं पिटिशनर या कोई, राइट? यू नीड पिटिशनर्स.
तो बस हम सब ने इकट्ठा किया, उसी समय विद इन अ फ्यू आवर्स पिटिशन रेडी हो गया और उनकी टीम ने रेडी करा, पार्थ यादव ने, आगे बढ़ी बात एंड वाज फाइल्ड। तो इसमें क्यों घुसे इज बिकॉज वी रियलाइज दैट ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। एंड आई वर्क विद सूफिया पठान, डॉक्टर सूफिया पठान in Saryu Trust. She heads the Center for Scientific Social Studies. Her work has largely in the past been on caste and communalism. She studied under S. Balagangadhar, who's the most prominent person working on decolonization of the Indian mind, if you like, especially looking at things like caste, for example, right? They say that, what is their view? That basically caste is a Western idea which we've picked up. It comes from their idea of religion, priesthood, monarchs, race, and so on and so forth. और वो यहाँ लगा दिया है. Just to give you a small example, and Sophia is trying to work on a AI generated film which is coming out very well. वहाँ क्या शब्द है? कास्ट है और सब कास्ट है, यही है. हमारे यहाँ क्या शब्द, हमारे शब्द क्या है? वर्णा, जाति, कुल, गोत्र, फलाना, चलते जाते हैं ये, ठीक है. अब आप इसका बताओ 1:1 क्या है? इज कास्ट इक्वल टू वर्णा? इज कास्ट इक्वल टू वर्णा? इट इज नो, नॉट एट ऑल. इट इज नॉट. वर्णा इज अ गुण कर्म, चाहे बर्थ बेस्ड हो ना हो, ये आर्ग्यूमेंट में मैं नहीं फंसूंगा, बट गुण कर्म से कनेक्टेड है. इज दैट रिलेटेड टू कास्ट? द आइडिया ऑफ कास्ट वॉज अ रेस आइडिया इन द वेस्टर्न आइडिया. हम नोबल्स हैं, है ना, वो पेजेंट्स हैं. भैया हमारा आइडिया नहीं है ये, हम पे क्यों आके ये चेप दिया? सो इन एन आइडियल स्टेट वी एक्चुअली, द एंड गोल ऑफ ऑल ऑफ दिस बैटल शुड बी अ रिव्यू ऑफ द वर्ड कास्ट इटसेल्फ. दिस इज नॉट एन इंडियन वर्ड, दिस इज नॉट अ वर्ड. इसके साथ जो इम्प्लीकेशन आते हैं ना, जो इमेजरी आती है इफ़ यू लाइक, जिससे हम अपने आप को देखते हैं, ये सब बदलना पड़ेगा, ये सब चेंज करना पड़ेगा. ये एंड गोल है, वो यूजीसी से कनेक्टेड नहीं है, बट जनरली कास्ट एंड कास्ट रिजर्वेशंस, प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटी एक्ट, रिजर्वेशन सिस्टम्स, ऑल दिस क्लासिफिकेशंस ऑफ SC, ST, OBC, मतलब बहुत हो गया यार, बहुत हो गया यार. द स्टेट इज एक्चुअली not endorsing the idea. The state is pushing for more and more caste consciousness in society instead of becoming a casteless society, as CGI just recently said. We're not heading towards a casteless society. We're actually ingraining this more and more. इस केस में क्या हुआ है, ये बोल रहे हैं UGC गाइडलाइंस जो हैं, इक्विटी गाइडलाइंस आई हैं, ठीक है. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी OBC के खिलाफ, लार्जली OBCs को केटर करा हुआ है, OBCs के खिलाफ अगर कोई कास्ट अट्रॉसिटी होती है, देन दे कैन डू कंप्लेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. उसमें से एक्सक्लूड किसको कर दिया? जनरल कैटेगरी को. हमारी प्रॉब्लम क्या है? आपकी जो भी गाइडलाइंस है कास्ट की, बड़ी अच्छी बात है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है. ये एक्सक्लूजन जो है ना, इसको हटा दो. कास्ट एक्सक्लूड किसी के साथ भी हो सकता है, हो सकता है नहीं. Brahmins right now are the most oppressed and victimized people in the country. वो जनेऊ कहीं काट देते हैं, कहीं शिखा का मजाक बनाएंगे. Is that not caste discrimination? Is that not? Fair point. Yeah. पंडितों को धुतकारते रहते हैं हम. ब्राह्मणों के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ बकवास किया जाता है. आप कर सकते हो ये सेम लेवल ऑफ बकवास अगेंस्ट एन SC ST? नहीं कर सकते. आप ST SC एक्ट में अंदर हो जाओगे, नॉन बेलेबल. बट ब्राह्मणों को रोज लताड़ा जाता है. जैसे इंदिरा जयसिंह ने कल बोला, ये सवर्ण तो हमारे सर पे नाचते हैं. ये 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट है. ये रिप्लेस सवर्ण विद SC ST. आप बोल सकते हो जाके SC ST तुम्हारे सर पे नाचते हैं, अरेस्ट हो जाओगे आप. ये कैसी बात है कि आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, 20-25% ऑफ सोसाइटी का आप जो मर्जी लताड़ो, बाकी सबको नहीं लताड़ते. ओके, किसी को भी मत लताड़ो भाई. दैट इज द आइडिया ना. आप कास्टलेस सोसाइटी चाहते हो ना, आप डिस्क्रिमिनेशन और ये जो भी एक्सप्लॉयटेशन हटाना चाहते हो, तो आप उसके रूल्स बनाओ ना, और हर किसी के लिए बनाओ. बस इतना मांगे हमारी इस केस में, बस इतनी मांगे. द लार्जर गोल इज फॉर कास्ट एंड व्हाटएवर टू बी एड्रेस्ड. बट इस केस के थ्रू देन द ऑब्जेक्टिव इज कि कास्ट रिलेटेड कॉन्वर्सेशन ढंग से वो डिबेट चालू हो,
एटलीस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर कॉन्शियसली इस पे वर्किंग की जाए, सो दैट रादर दैन मेकिंग अ सोसाइटी विच इज so obsessed or touchy about their With caste, caste, yes. we can make a casteless society which can largely think of absolutely. themselves as Hindus and not divided on their caste. Yeah, but, well, Will yes. they think of themselves as Hindu is a long question. Correct. But essentially, But अब डिवाइड ना हो आप बस. यहाँ तो पूरा का पूरा they had opened another battlefield. OBCs versus generals. अभी भी सारा जो हेट ट्वीट्स आ रहे हैं हमारे को, हम सबको हेट ट्वीट्स आ रहे हैं, लिंक्डइन पे पोस्ट डाली जा रही हैं, ये सवर्ण लोगों का साजिश है, वही इंदिरा जयसिंह बोल रही है, वही भाषा भरे पड़े हैं. दे आर बेसिकली ट्राइंग टू नाउ अटैक अस कि हम तो ओबीसीज के खिलाफ हैं. अब भैया हम ओबीसीज के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल बोल रहे हैं समाज के दो भागों को लड़वाओ मत. ये सब बोलकर सीएम मोहन यादव ने बोला फॉरेन फंडेड सवर्ण मूवमेंट है. ऐसी स्टेटमेंट उनको देनी नहीं चाहिए. एक चीज़ और बता दूं, मैं कैमरा पे भी डाल देते हैं, बीजेपी के कई लोग, मैं नाम तो ले ही नहीं सकता अभी, कई मंत्री पद के लोग, विधानसभाओं के मंत्री, स्पोक्स पर्सन फ़ोन कर करके बोल रहे हैं भाई साहब थैंक यू फॉर डूइंग दिस. मैंने कहा आप लोग, आप ही की वजह से तो है. नहीं आप जानते नहीं हो कैसे निकल गया पता नहीं, मगर थैंक यू फॉर स्टॉपिंग दिस, आपने सोसाइटी को बड़ा हेल्प कर दिया. ये बोल रहे हैं बीजेपी के. कम से कम 8-10 फ़ोन आए हैं तो मेरे को, बाकी संजय जी को, विष्णु भाई को, अनुभव को, अलग सब आए हैं. तो आई थिंक समाज के अंदर भी ना, अगर ये मूवमेंट ना हो, ये कॉन्शियसली अगर आपने शुरुआत ना की होती, तो आई थिंक बस ये ऐसे पासिंग में चला जाता था और उसके बाद फिर एकदम पासिंग, ये तो डिजास्टर हो गया था. बिकॉज इनका नेक्स्ट टारगेट, आप इंदिरा जयसिंह का वंस अगेन सुनना है, मे बी यू पुट दैट इन दिस वीडियो. शी इज सेइंग, ये तो 2012 से हम चल रहा है, 2018 है, 19 में हमने मॉडिफाई भी करी है. पहले यूनिवर्सिटीज़ में जाना था, फिर वी हैड टू गेट इनटू द प्राइवेट सेक्टर. ये तो सेम सियाटल वाले कास्ट लॉज लेकर यहाँ पर आ रहे थे. अगर आपने बोल दिया किसी को आई एम ओप्रेस्ड बिकॉज इसने मुझे प्रमोशन नहीं करी बिकॉज मैं छोटी जाति का हूँ, गया करियर उस बंदे का, खत्म. कुछ केस हुआ था ना यूएस में, ऐसे ये यहाँ पर करना चाह रहे थे. So this is a. Then I think. Actually, I think the government should be thankful. I don't know how this passed. It seems like a bureaucracy error. And absolutely, it's. I mean, accountability has to first be with the education ministry and minister. जिसके खिलाफ आपके वजह शायद में तो बहुत और कंप्लेंट्स भी होंगी. पता नहीं मेरी है. ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का अभी संक्रांत सानू का ट्वीट, वहाँ पर sex and gender is different. Oh, what madness. How is this even going through? Can't just completely beats us. And हम तो हमारी ही पार्टी, हमारी सरकार से लड़ाई करनी पड़ती है सब करके, मतलब feels terrible. So what now? अभी status update क्या है? नहीं बस अभी हियरिंग है मार्च में, एंड उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी आर्ग्यूमेंट्स. वी आर डूइंग सम रिसर्च, इनफैक्ट फ्रॉम सरयू, Dr. Sufia Pathan, Dr. Rinku Vadera, we are preparing some material to provide to Vishnu Shankar Jain bhai, and of course his team is doing more research on other topics, and then we'll be filing. There are other petitioners as well. They'll be all. But is there a hope that with this petition, with this case, we are opening a conversation around caste finally? Yes. Finally, there is a lot of consciousness because of this. There's a lot of exhaustion in the country with caste. बहुत. क्योंकि 2015 से मुझे याद है in all of public debates and conversations ना, you're reading about caste. In fact, since I've known you, बड़े सारे हमारे जो मेल थ्रेड्स होते हैं उसके अंदर यही कास्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है कि अच्छा कास्ट की बात करनी है, कास्ट है या नहीं है, all that goes on. But then you see कि finally perhaps ये I think it's foot in the door to start a conversation around caste. 100%. There is also another conversation that has to happen, which is around data. And I brought up Indira Jaisingh saying ये सवर्ण तो हमारे सर पे नाचते हैं, तो एक हमने पोस्टर बना के सर्कुलेट करा है. इंदिरा जयसिंह जी ये बता दीजिए, शो डेटा टू अस जिससे आप ये असर्शन प्रूव कर सकते हो. शो अस डेटा. The problem is they don't have data. Do you know the state right now of Prevention of Atrocities Act में? You have data of violence against SC/ST community members. सूफिया की टॉक में जो संगम टॉक्स पे है बहुत अच्छे से उन्होंने बताया हुआ है. But in summary, you have data against SC/ST के अगेंस्ट कितनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस और जो भी तरह की कैटेगरीज हैं उसमें कितने ऐसे केसेस हैं, ये डॉक्यूमेंट होता है.
who the oppressor is वो डॉक्यूमेंट नहीं होता. सो अगर हम दोनों SC या आप SCO में ST हूँ, अगर मैंने आपको पीट दिया तो ये डॉक्यूमेंट हो जाएगा कि SC के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है. ऑपरेसर कौन है? ये डॉक्यूमेंट नहीं होता. अजम्पशन क्या होती है? ब्राह्मण ने किया है, सवर्णों ने किया है. ओ भैया, damn it, first record the data. And do you know that by most likely the majority of all cases, and we have some data from Bihar collected by journalists, majority of cases of oppression or violence against SC/ST communities is from SC/ST communities themselves. SC/STs are committing violence against other SC/ST members. इंटर उसमें कितनी जाति हैं? सैकड़ों जाति है. वो एक जाति कोई मूसाहार किसी और को मार देगा, वो किसी और को पीट देगा. अब दैट इज विद इन दैट कम्युनिटी. बट हाउ आर यू रिकॉर्डिंग? और झगड़ा हो गया तो वहां पे बट वो रिकॉर्ड कैसे होगा? डॉक्यूमेंट होगा कि ऑपरेशन हुआ SC/ST के अगेंस्ट, और अजम्पशन क्या होगी? सवर्णों ने किया है. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप समझ रहे हो इसके इम्प्लीकेशन? आप सोसाइटी को तोड़े जा रहे हो और डेटा को ढंग से देख भी नहीं रहे हो कि हम क्या ये डिलीवर कर रहे हैं ठीक से जो हमने assumptions लिए हैं सोसाइटी. बट द सपोर्ट दैट यू हैव गॉटन सिंस यू फाइल्ड दिस पिटीशन, आपको लगता है कि क्या हमारा समाज जाति पर बात करने के लिए तैयार खड़ा है? क्योंकि कई ऐसे भी जातियां हैं या जातियों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद एक पेडेस्टल पे बैठे हैं और वो स्टैचर उनका शायद डिस्टर्ब हो सकता है अगर ये कॉन्वर्सेशन हो. बट वो तो हर जगह होता है अर्जुन. हर नहीं. सो द क्वेश्चन इज के डू यू थिंक आवर इंडियन सोसाइटी और आवर हिंदू सोसाइटी इज इट रेडी टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस नाउ? I don't know if they're ready or no, but we will have to use a legal route because we cannot. There is exhaustion in the country, that is for sure. Like exhaustion with this caste debates, reservations, caste consciousness. मतलब बहुत हो गया है. So, and you know, we need a direction and clarity on how are we moving towards the vision of a casteless society, for example, right? But part of that is ये caste शब्द को ही रिव्यू करना पड़ेगा. नहीं, fair point. मेरे को बहुत मैं कई वर्षों से तो संघ की किसी कार्यशाला में या संघ के कुछ सीनियर व्यक्तियों से आप बात करते हैं ना, आपको सुनने को मिलता है कि वो सब लोग चाहते ज़रूर हैं कि जाति पर एक चर्चा हो और फिर ढंग से हिंदू समाज को जो जाति के नाम पर बड़ा क्विकली बट जाता है उसको किसी तरह से इकट्ठा किया जा सके. अब फाइनली मुझे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट नहीं, इस विचारधारा से कहाँ बढ़ता है जातियों के समाज पे. एक केस में देख लेते हैं. फाइल किसने करा? इलेक्शंस में बढ़ जाता है. इलेक्शंस में बढ़ता है. तो आपको इलेक्शंस में बढ़ता है इसलिए प्रॉब्लम है आपको? नहीं, पर ये बढ़ना क्यों है? क्या इलेक्शंस के अंदर अगर जाति के नाम पर अगर आप किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मुसलमान वोट अगर सिर्फ तो आप क्या चाहते हैं कि सारी जातियां इकट्ठी होके एज ए हिंदू सोचें, मोनोलिथ की तरह सोचें अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुस्लिम वर्सेस हिंदू बनाएं और बीजेपी को वोट करें? यही चाहते हैं? मैं नहीं चाहता. मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूं. मैं आरएसएस का आपको कुछ जो लीडर्स हैं जिनसे बात हुई है उनका मानना ये है कि जाति के आधार पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है. वो कहीं पर ब्राह्मण के खिलाफ होता है, कहीं पर एससी के खिलाफ होता है, कहीं पर ओबीसी के खिलाफ होता है. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, डेटा तो है ही नहीं ना, जैसे ब्राह्मण के बोल रहा हूं, डेटा नहीं है, असर्शंस है. तो असर्शंस है. और वो असर्शंस इसलिए भी होते हैं क्योंकि समाज के दे आर सेइंग दैट दे हैव सीन इट थ्रू देयर लिव्ड एग्जांपल्स. 100% क्या एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन होती है? हाँ होती है. अमेरिका में भी होती है, हर जगह होती है. अब उनका आर्गुमेंट ये था कि वो चाहते हैं कि फाइनली किसी तरह से इस तरह की कॉन्वर्सेशन शुरू हो कि जाति के आधार पर अगर भेदभाव होता है उसको किस तरह से, और क्या समाज के अंदर जाति की किसी तरह की एकता बन सकती है क्या? एंड डू यू थिंक ये काम, ये जो पिटीशन है, डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि उस डायरेक्शन में समाज को लेकर जाए? और डू यू थिंक ये इम्प्लिसिट है ही नहीं कि मैं डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन हर समाज में होती है, बिल्कुल होती है. डेटा नहीं है ये करने का कि कौन किसके खिलाफ कर रहा है. डिस्क्रिमिनेशन अगर आप सारे भारत में केवल ब्राह्मण होते, क्या डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाती? एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाती? होती ना. सपोज सारी ब्राह्मण जातियां ही होती और कोई होता ही नहीं, कोई लोअर नहीं होता, क्या डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाती? क्या इकोनॉमिक्स पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होती? स्किन कलर पे नहीं होती? या सोसाइटी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है, एक व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का ढूंढता है. भेदभाव हर समाज में होता है.
क्या वाइट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते? हाँ, अमेरिका में नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं। हिस्पैनिक्स की वोट लगा के रखते हैं, वो वाइट नहीं है क्या, या उनका येलो है, क्या है? हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होती है, ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है डिस्क्रिमिनेशन। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए कि यार एक्सप्लॉयटेशन मत करो, मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं, मैं आपको छूंगा नहीं, आपको इससे प्रॉब्लम है? अरे कमाल है यार, मेरी चॉइस है, मैं आपको नहीं छूना चाहता। वाई डू हैव अ प्रॉब्लम? मैं आपको प्रसाद ऊपर से दूंगा, टच करके नहीं दूंगा, मैं आपको टीका हाथ में ऐसे डाल दूंगा, आप खुद लेके लगा लो। ये क्यों एक्सप्लॉयटेशन है? नहीं छूना मुझे आपको, मेरी मान्यता है, मेरे छूने से मुझे जाके नहाना पड़ता है बिकॉज मेरी एनर्जी खराब होती है, जिसकी वजह से मैं डीटी के पास नहीं जा सकता। मान्यता है भाई मेरी। व्हाई इज दिस एक्सप्लॉयटेशन? प्लीज टेल मी। आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। मुझे बुरा लगता है क्या? ओके, लगता है, लगे मत जा फिर उस पंडित के पास, वो मंदिर में मत जा, दूसरे मंदिर में चले जा जहाँ पर ऐसा नहीं होता, जहाँ खुद टीका लगाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वही बात है। सारे अगर अब इसी को बड़ा कर देते हैं, सारे अगर ब्राह्मण होते हैं तो बंद हो जाती है क्या एक्सप्लॉयटेशन? ऐसा हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता। ब्राह्मण भी तो अपने आपको एक्सप्लॉयटेशन में क्या परेशानी है? आपको ये है कि यार किसी का तुष्टिकरण नहीं हो, किसी को आप ना बकवास बोलो, कुछ गंदा बोलो, उसको मारो पीटो, ये सब ना हो। वायलेंस लॉज हैं, आप उस हिसाब से लॉज बनाओ विचार। इसमें कास्ट कहाँ से घुसेड़ देते हो आप बीच में? पर इस बात का क्या कि पब्लिक में कोई फैसिलिटीज के लिए एवेन्यूज अगर बंद करे जाएं तो वो अगर एक्सप्लॉयटेशन के अगर मंदिर में किसी को एक मंदिर में नहीं, मैं नॉन टेम्पल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, क्या तो हो उसके अंदर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो उसका क्या किया जाए? जैसे एजुकेशन के कॉलेज में मुझे इंदिरा जयसिंह ने जैसे बोला, सवर्णों को क्या होता है कि सारी पीएचडी की सीट्स उन्हीं को मिलती हैं। अच्छा, डेटा दिखा दो आप। पहली बात, अगर सपोज ऐसा हो रहा है, सपोज मैं ब्राह्मण हूँ और मेरे पास कोई ब्राह्मण बच्चा आता है वर्सेस कोई SC ST बच्चा आता है, मैं ब्राह्मण को प्रेफर कर देता हूँ, तो उल्टा भी तो प्रेफरेंस होती है नहीं होती? मतलब SC ST टीचर होता तो वो भी कर देता। अब वो कहेंगे नहीं SC ST टीचर ही नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। और 75 साल से आप रिजर्वेशन कर करके आप यहाँ तक आए हो, तो अब कब तक चलता रहेगा ये एंडलेसली, है ना? और अलाउ पीपल टू राइज बाय गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। रिजर्वेशन मुझे ऑनेस्टली समझ में नहीं आता है, विच इज बेसिकली आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, मगर फिर भी हम डालेंगे। अब इसमें बात आ जाती है प्रिविलेज की। यार तुम प्रिविलेज दो यार। अर्जुन मुझे सीरियसली बता, हमारी एक कैमरा टीम है, अनुभव पांडे है, ये ब्राह्मण है, अयोध्या में एक गांव का है। मैं एक चलो मैं तो जब शुरू करा था तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से शुरू करा था, बट बाय द टाइम आई ग्रू अप आई वाज मे बी अ मिडिल और मिडिल अपर मिडिल क्लास फैमिली। बाय बर्थ मेरे पिताजी ने मुझे पैदा करके बाय डिफॉल्ट मुझे प्रिविलेज दी है। आपको भी मिली होगी, है ना? बाय बर्थ मिली है आपको। तो ये तो समाज का, दिस इज हाउ इट इज। बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलती हैं, उसकी इतनी प्रिविलेज नहीं थी। वो ब्राह्मण है मगर उसकी प्रिविलेज नहीं थी क्या? मुझसे कम थी। मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो और नीचे हूँ, मगर फिर भी मेरी प्रिविलेज हायर है। दैट इज हाउ इट इज बाय बर्थ। किसकी इकोनॉमिक कैटेगरी कैसी है, उसकी बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज़ कैसा है। मैं कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। एवरी टाइम पीपल फॉर एग्जांपल कंसिडर, यार मुझे बुक्स देके जाते हैं, मेरे से पढ़ी नहीं जाती, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई नेचर। यू गिव इट टू समबडी जो एक परिवार से आता है ऑफ ट्रेडिशन ऑफ स्टडीइंग, उसकी नेचर होगी पढ़ने की भाई। आई मीन you're trying to you're basically trying to say, and this is what Thomas Sowell says, right? His book Conflict of Visions. Yep. This is exactly the absurdity that these people are going on, कि सबको एक pedestal पे ला दो because everybody will become equal. In the Hindu world view, nobody can be equal. This is the design of nature, of life itself. The whole equality idea is an Abrahamic idea जो हमारी constitution में घुस गया है. Eventually all this has to change, यार. We need an Indian worldview of looking at ourselves. You know, we are जीवात्मास on our journeys. हम कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी शूद्र बनते हैं, कभी चांडाल बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी क्षत्रिय बनते हैं, and you know we are born a woman and a man and all sorts of things, disabled sometimes, mentally disabled sometimes. This is the nature of life. If we operate from there, our education institutions would be different. We would be thinking not of equality
but of excellence of wherever we are born. अगर हमारी कोई प्रोक्लिविटी है किसी समाज के, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी महेश्वरी समाज का 12 लाख मेंबर्स हैं महेश्वरी समाज के भारत में। जोधपुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी, माय गॉड मैंने ऐसा मेला नहीं देखा। मैंने जीवन में इतनी एक समाज की इतना बड़ा मेला विद सच मैसिव स्टॉल्स ऑफ बिग बिजनेसेस नहीं देखे एक जगह पे। मैं बता रहा हूँ, स्वामी विज्ञानंदा वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम करते हैं। I absolutely have started thinking that we should not have a World Hindu Economic Forum. We should actually tell the other समाजेस, जैन समाज को और ब्राह्मण समाज को, और कि भैया ये जो महेश्वरी समाज ने करा है ना, तुम सब ऐसे ऑर्गेनाइज होके ऐसा करो। That is what we need. Actually, I'm all for जातीस, because they came together and they had एक हॉल में गया, 1000-1500 लोग बैठे होंगे, पूरा दिन से 3 दिन तक स्टार्टअप वो प्रेजेंटेशन चल रही हैं, आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम द महेश्वरी समाज टू फंड स्टार्टअप्स। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जीतो डज विद द जैन समाज। दिस इज हाउ वी आर कंस्ट्रक्टेड। अब क्या चाहते हो कि ये सब टूट जाए और सब अर्जुन हिंदू लिखें, राहुल हिंदू लिखें? ये अब्सर्ड आइडिया है ये। I think you've given good food for thought. This is, I mean, a privilege, and perhaps this conversation has to go. And I'm hoping कि UGC के इस petition के बाद हम UGC पे भी और conversations करेंगे, और धर्म और हिंदू समाज के बारे में भी एक conversation, और perhaps I'm hoping कि उसके अंदर कोई understanding के या वो corrections जो होने चाहिए समाज के अंदर consciousness build करने के लिए, इस तरह की और बातें करनी पड़ेंगी, आपको और मुझे को भी करनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी है कि वो आइडियाज़ लार्जली हमारे समाज में जो लोग बैठे फैलने पड़ेंगे, क्योंकि जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसेंशली बहुत सारा शायद धर्म सभाओं की होगी या मंदिरों की होगी, वहाँ से स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिला हुआ है। एंड देन परहैप्स लेट्स यूज मीडियम्स लाइक डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया टू ब्रिंग इट टू फॉर। That being said, Rahul, thank you very much for taking out the time. Thank you very much. I hope all of you enjoyed the show. We'll be bringing the second part and third part also now, hopefully. Soon on the caste issue, what started from the UGC guidelines and where it's headed now. Thank you very much.